Good afternoon, students. We teach lesson number 4th, food security in India. First, we know what is food security, the meaning of food security. Food, clothing, and housing are the three main requirements of life. Out of all this, availability of nutritive food is the most important necessity of human life. Food security is related to the food related needs of man. In simple words, food security means availability of nutritive food to all. Also, people should have purchasing power, that means money, for the arrangement and availability of food at reasonable price. Food security ensure availability of basic necessary food for all physically as well as economically. बच्चों, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का चौथा अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ाऊंगी। पहले हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा क्या होता है, उसका आशय क्या होता है। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन प्रमुख आवश्यकता हैं। इनमें से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खाद्यान्न सुरक्षा का संबंध मनुष्य के भोजन संबंधी आवश्यकताओं से है। सरल रूप में खाद्यान्न सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। साथ ही ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति के पास भोजन व्यवस्था करने के लिए पैसा हो और खाद्यान्न उचित मूल्य में उपलब्ध हो। खाद्यान्न सुरक्षा सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आशय है। Does on the base of the above, the food security including the following ways. First, availability of food for the whole populations of the country. The second is availability of enough money to purchasing the necessary food. The third one is the food should be available to all at affordable prices. And fourth one is the quality of the available food should be good. Food security generally implies the whole populations at all times should have access to minimum quantity of cereals. But due to the continuous changes in a developing country, there can be following stages of food security. Availability of adequate quantity of food grains, availability of food grains and pulses in adequate quantity, availability of milk and milk product along with the food grains and pulses, availability of food grains, pulses, milk products, vegetable food etc. बच्चों, आपने उपरोक्त हमने जो समझाया खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, उसमें कुछ निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती है कि देश की समस्त जनसंख्या को खाद्यान्न की आवश्यकता उपलब्ध होनी चाहिए। सेकंड है कि उपलब्ध खाद्यान्न को खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। तीसरा है खाद्यान्न उस मूल्य पर उपलब्ध हो जिस पर सभी उसे खरीद सके। खाद्यान्न हर समय उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध खाद्यान्न की किस्म भी अच्छी होनी चाहिए। सामान्यतः खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत समस्त जनसंख्या को खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता कराना होता है, परंतु एक विकासशील अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होने के कारण इनकी निम्न आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। पर्याप्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अनाज और दालों की उपलब्धता होनी चाहिए। अनाज और दालों के साथ दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धता होनी चाहिए। अनाज, दालें, दूध से बनी वस्तुएं, सब्जियां, फल इत्यादि भी उपलब्ध होना चाहिए। नाउ मेन द नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड हु आर फूड इनसिक्योर। अर्थ in need to importance and food security. In the present Indian situations, food security has become a very important. Our economy is developing, but the population is also increasing rapidly.
So to meet the increasing demand, food security has become necessary. The causes responsible for this can be divided into two parts: internal cause and external cause. The first internal cause is include those which are related to the internal conditions of country, just like basic of life depend on the monsoons, low productivity, natural climates, for continuously rising prices and progress of country. The basic life is the India country is large population and birth rate is also very high. Therefore, food security is necessary. The depend on monsoon. The majority of crops in India are depended on the monsoon for irrigations. But the monsoon is always uncertain and irregular. The low productivity. In India, the productivity of food grains per hectare is low. From this point, the view of also food security is necessary. Natural climate. Other than the problem of the monsoons, floods, insect and pests, cold waves, soil erosions, etc. Also, that destroy the food crops in the some of the other parts of some country. So, the problem of shortage of food crops arise. The continuously rising prices. The prices of food grains are increasing continuously, which result in the starvations. So, food security is necessary to overcome this problem. The progress of country. No country can progress without self-sufficiency in food productions, or for this food security is necessary. And second one is in internal causes. The external causes include those causes which are related to the relations of other countries with our country. The dependence of foreign countries. Second one is a decrease in foreign exchange, and third one is foreign pressures. The depend of foreign countries, food is the basic need of human being. So when this requirement is not fulfilled, it becomes the primary duty of the government to fulfill this need of our people. If there is a shortage food, we have to depend on the foreign countries. Whenever there is a indicate of food, we have supply of food grains in our country, we have to important even if food grains are costly or cheap, the quality of good or bad. The decrease is foreign exchange. Whenever we import things like food grains, we have to spend our foreign exchange unnecessary. We can meet our demand for food ourselves, but we cannot. This result is shortage of foreign exchange to purchase very important commodities. Foreign pressures. Countries which supply food grains to other countries become influential and then they force them to follow their policies. These countries dominate those countries which import food grains from them. As a result, they lost their freedom to decide their फॉरेन पॉलिसीज़. बच्चों, खाद्य सुरक्षा और आवश्यकता का महत्व. भारत की वर्तमान स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक हो गया है. एक और तो हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है और दूसरी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है. अतः खाद्यान्नों की बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए हमें खाद्यान्न सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है. इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आंतरिक और बाहरी. इनमें जो आंतरिक का कारण है वो जीवन का आधार, मानसून पर निर्भरता, कम उत्पादकता, प्राकृतिक बाधाएं, निरंतर बढ़ती महंगाई और देश की प्रगति. जीवन के आधार के हिसाब से भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, साथ ही जन्म दर भी ऊंची है. अतः लोगों के भरण पोषण के लिए एक और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक होती है. मानसून निर्भरता. भारत में अधिकांश फसलें सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है, जबकि मानसून अनिश्चित और अनियमित होती है. कम उत्पादकता.
भारत में खाद्यान्न उत्पादकता प्रति हेक्टेयर तथा प्रति श्रमिक दोनों की दृष्टि से कम है। इस दृष्टि से खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है। प्राकृतिक बाधाएं, मानसून की समस्या के अतिरिक्त निरंतर बढ़ती हुई महंगाई, खाद्यान्नों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को निपटने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। देश की प्रगति, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए हुए बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। इस हेतु खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक होती है। अब बाहरी कारण के अंतर्गत दूसरे देशों से हमारे देश के संबंधों से जुड़े होते हैं, जैसे विदेशों पर निर्भरता, विदेशी मुद्रा कोष में कमी, विदेशी दबाव। विदेशी पर निर्भरता यानी खाद्यान्नों की आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है, अतः उनकी पूर्ति न होने पर देश की सरकार का ये प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है कि वे जनता की आवश्यकता की पूर्ति करें। देश में जब उनकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है तो विदेशों पर ही निर्भर होना पड़ता है। फिर खाद्यान्न महंगे हो या सस्ते, अथवा उनकी गुणवत्ता अच्छी हो या न हो, हमें खाद्यान्न आयात करना ही पड़ता है। विदेशी मुद्रा कोष में कमी, जब हम विदेशों से खाद्यान्न जैसे वस्तुएं बाहर से मंगाते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से खर्च हो जाती है। खाद्यान्न की पूर्ति हम स्वयं भी कर सकते थे पर नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप ये होता है, बहुत ज़रूरी वस्तुएं खरीदने तो हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं बच पाती है। विदेशी दबाव, जिस देश के खाद्यान्नों की पूर्ति प्रभावशाली हो जाती, फिर अपनी नीतियों को मनवाने का प्रयास करते हैं, ऐसे खाद्यान्न का आयात करने वाले देशों के हावी हो जाते हैं और आयातक देश की विदेश नीति पर निर्धारित करता है। अब इसी के हिसाब से मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ जो आपको समझ में आएगा। रामू वर्क हैज़ अ कैजुअल लेबर इन द एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। हिज एल्डेस्ट सन Samu, who is the 10 years old, also work as a pali to look after the cattle of the sarpanch of the village. Satpal Singh, Somo is an employee for the whole year by the sarpanch and he paid a sum rupees 1000 for this work. Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. His wife is also part-time working as house cleaner for the livestock, removing and managing cow dung. She gets half-liter milk and some cooked food along with the vegetables for her daily work. Besides, she also works in the field along with her husband in the busy seasons and supplement his earning. Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing, transplanting and the harvesting. He remained unemployed for about 4 months during the period of plant consolations and the maturing in the year. He looks for work in other activities. Sometimes he gets employment in the bricklaying or in constructions activities in the village. By all his efforts, Ramu is able to earn enough either in case or kind for him to busy to buy external for 2 square meals for his family. However, during the day when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties and sometimes his small kids have to sleep without food. Milk and vegetable are not a regular part of meals in the family. Ramu is a food insecure during 4 months when he remained unemployed because of the seasonal nature of agriculture work. बच्चों, आपको मैं इसी को देखते हुए एक रामू की कहानी बता रही हूँ कि रामू रायपुर गांव में एक कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतियार मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा जो बेटा है सोनू,
वो गांव के सरपंच के वहाँ पशुओं की देखभाल करने के वाला पाली के रूप में काम करता है। सोमू को सरपंच पूरे साल भर में सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी जो पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है, उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती का काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई और पौधारोपण और फसल की कटाई के समय में ही काम मिलता है। वो वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक ही अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वो दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों में नकद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 के भोजन के लिए जरूरी चीज़ें ही जुटा पाता है। जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उससे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भी भूखे पेट ही सोचना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षित ही रहता है। नाउ वी द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। व्हाट इज द स्टॉक चीफ फूड ऑफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड चीफ ऑक्यूपेशंस इज फार्मिंग. Cereals are grown in about 70-80% total agricultural land. There are 2 main crops are divided, Kharif and Rabi. Kharif means these crops are sown in the month of July and harvest in the month of October. They include paddy, means rice, miles and maize, etc. The Rabi crops, these crops are sown in the month of October and harvested either in the end of March or in April. They include wheat, oats, gram, etc. In India, different kinds of cereals are grown. Regarding the productions of food grains, India stands third after China and America. The major food grains cereals are India are described as following: the rice and wheat, maize and other cereals. बच्चों, आज हम देखेंगे कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ व्यवसाय कृषि ही है मुख्य व्यवसाय, और इसके कारण यहाँ पे 70 से 80% भाग खाद्यान्न में उगाए जाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि कम। इसकी 2 मुख्य फसलें हैं जो खारिफ फसलें और राबी फसलें। खारिफ फसलें वे फसलें हैं जो बोई जुलाई में जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि खाद्यान्न फसलें आती हैं। राबी फसलें वे होती हैं जो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च के अंत या अप्रैल में काटी जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना आदि खाद्यान्न फसलें आती हैं। भारत में अनेक प्रकार के खाद्यान्न पैदा होते हैं और उत्पादन की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद भारत का ही स्थान आता है। भारत के मुख्य खाद्यान्न चावल, गेहूँ और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं। द efforts of government for food security. The buffer security. What is buffer security? The buffer system is a buffer stock is a stock of food grains, namely wheat and rice produced by the government throughout the Food Corporation of India. The Food Corporations means FCI. The purchase wheat and rice from the farmer in states where there is a surplus productions. The farmer are paid a pre-announced price for these crops.
This price is called minimum support price. The minimum support price is declared by the government every year before the showing seasons to provide incentive and farmers for rising for the productions of the crops. The purchased food grains are stored in the granaries. Do you know why this buffer stock is created by government? This is done for distribution food grains in the deficit area and among the poorer states and society at the price lower the market price, also the issue price. This also help resolve the problem of shortage of food during the adverse weather conditions or during the periods of calamity. बच्चों, बफर आपने सुना ही होगा कि बफर सिस्टम क्या होता है। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिकतर प्राप्त अनाज, गेहूँ, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिक शेष उत्पादन वाले राज्यों से किसानों से गेहूँ, चावल खरीदता है और किसानों को उसके फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत भी कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा इसलिए करती हैं कि जिन क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण के लिए करते हैं और इस कीमत में निर्गम कीमत भी कहते हैं। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में भी मदद करता है। What is the public distribution system? The food pursued by the FCI, the distributed throughout the government, regulated the ration shops and among the poorer sections of the society. This is called the public distribution system. The short form is PDS. Ration shops are now present in the most localities, villages, towns, cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. Ration shops, also known as the fair price shop, keep the stock of food grains. बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिकतर प्राप्त सरकार विनिमय राशन दुकानों के माध्यम से समाज और गरीब वर्गों को वितरित करती है और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस भी कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में भी राशन की दुकानें होती हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें। राशन की दुकानों में जिनमें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाज़ार की कीमत से कम पैसों में लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे 35 किलोग्राम अनाज या 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी आदि में निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीदता है। राशन कार्ड भी 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनता में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड होता है। इस प्रकार हम देखते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। फर्स्ट इज अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड सेकेंड इज अ बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो poverty line and third one is a APL card for all others.